Good morning to all my dear students. Today I am going to start chapter 14, The Pot of Gold, मतलब सोने से भरा हुआ पॉट या पात्र. Let's start chapter. Subuddhi and Kubuddhi were two friends who lived in a certain village. Subuddhi was an honest and holy man and led a good life. सुबुद्धि और कुबुद्धि एक गांव में दो मित्र थे. सुबुद्धि एक ईमानदार व पवित्र आदमी था और एक अच्छा जीवन बिताता था. कुबुद्धि was a wicked man and led a life of drinking and gambling. In a little while, Kubuddhi had finished all his money and was penniless. He went to Subuddhi and said, "Friend, we are both poor and do not have any money. Let us leave this city and go to another country." कुबुद्धि एक दुष्ट व्यक्ति था जो शराब पीता था और जुआ खेलता था. कुछ समय बाद कुबुद्धि का सारा धन खत्म हो गया और उसके पास एक भी रुपए नहीं थे. तब वह सुबुद्धि के पास गया और बोला कि मित्र, हम दोनों गरीब हैं और हमारे पास कोई धन नहीं है. चलो हम अपना देश छोड़कर दूसरे देश चलें. सुबुद्धि agreed. The two set out on a journey and traveled to many countries. They enjoyed looking at the new cities and their people and their way of life. Many years passed but they could not make much money because they were always traveling. सुबुद्धि मान गया. दोनों एक यात्रा पर रवाना हुए और उन्होंने कई देशों की यात्रा की. उन्होंने नए नए शहरों को, उनमें रहने वाले लोगों को व उनके जीवन के तरीके देखने का आनंद लिया. कई वर्ष बीत गए पर वे अधिक धन बना ना सके क्योंकि वे हमेशा यात्रा किया करते थे. Then one day suddenly their luck changed. While traveling through the forest, the two friends discovered a pot containing 1,000 gold coins. The friends were very happy about their discovery and danced with joy. फिर एक दिन अचानक उनका भाग्य परिवर्तन हुआ या भाग्य बदल गया. एक जंगल से गुजरते वक्त उन्होंने एक बर्तन में पाया जिसमें 1,000 स्वर्ण मुद्राएं थीं. दोनों मित्र अपनी खोज से बड़े प्रसन्न हुए और आनंद से नाचने लगे. Let us now return home, said Subuddhi. We have got what we have been looking for. This is enough to make both of us rich. There is no use of traveling any further. Let us divide the gold between us. You take your share, I shall take mine. On returning home, we shall treat our friends to fine dinners. We are rich now. आओ अब हम घर चलें. सुबुद्धि ने कहा, हम जिस खोज में मतलब जिस चीज़ की खोज कर रहे थे वह हमें मिल गई है. यह हम दोनों को धनवान बनाने के लिए काफ़ी है. अब आगे यात्रा करने में कोई लाभ नहीं. यह स्वर्ण हम आपस में बांट लें. तुम अपना हिस्सा ले लो और मैं अपना ले लूँगा. घर लौटकर हम अपने मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करेंगे. अब हम धनवान हो चुके हैं या अमीर हो चुके हैं. Kubuddhi was greedy and had a plan to cheat his friend of his share of the gold coins. He said, "It is unwise to take all the gold to the city. When the friends see so much money, they will ask us to lend some to them, or they may even steal it. Let's take 100 coins each and bury them
remaining in the forest. We can always come back and take the money whenever we need it. कुबुद्धि लालची था। उसकी योजना थी कि वह अपने मित्रों को धोखा देकर उसका स्वर्ण का हिस्सा हड़प ले। उसने कहा, शहर में सारा धन ले जाना मूर्खता है। हम थोड़ा सा धन या कुछ 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाएंगे, बाकी का जंगल में मतलब गड़ा देंगे। बरी यानी गड़ा देना। हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे लेने आ जाएंगे। सुबुद्धि एग्रीड विथ कुबुद्धि। टुगेदर दे बरीड द मनी अंडर एन ओल्ड banyan tree and returned to their homes with a part of their new found wealth. सुबुद्धि मान गया और उन दोनों ने मिलकर एक बरगद के पेड़ के नीचे उस धन को गड़ा दिया और अपने नए प्राप्त धन का हिस्सा लेकर गांव लौट गए। कुबुद्धि squandered his money in a very short time. When he had finished all his money, he quickly went back to the banyan tree one dark night, dug up the pot of gold coin and returned home with the 800 gold coins. He buried the empty pot at its original place and returned home. कुबुद्धि ने बहुत जल्दी ही अपना जो पूरा धन था उसको समाप्त कर दिया था। जब उसका सारा धन समाप्त हो गया तो वह पुनः उस जगह पर वापस आया एक दिन रात में और उसे खोदा। ठीक है, डग मीन्स खोदना। तो उस जगह पर खोदा जहाँ पर उन लोगों ने उस धन को गड़ाया था, उसे खोदा और उसमें से 800 स्वर्ण मुद्राएं थी उसे लेकर घर आ गया। उसने खाली बर्तन उसी जगह गाड़ दिया। आफ्टर अ मंथ कुबुद्धि वेंट टू सुबुद्धि एंड आस्क्ड हिम टू कम अलोंग to the forest to take an equal amount of gold coins. एक माह बाद कुबुद्धि सुबुद्धि के पास गया और उससे कहा कि वे जंगल में चलकर अपने अपने हिस्से की स्वर्ण मुद्राएं ले लें। Two friends went together and dug up the place where they had buried their pot of gold coins. There were no gold coins in the pot. Subudhi was shocked. जब दोनों दोस्त वहाँ पर गए और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने उस बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ उन्होंने उस गोल्ड कॉइन को रखा था या गड़ाया था उसे खोदा और देखा कि जो गोल्ड कॉइन का जो पॉट था वो पूरा खाली है। तो सुबुद्धि देखकर क्या हो गया, शॉक्ड हो गया। द विक्ड कुबुद्धि देन सेड, सुबुद्धि इट इज you who have taken away all that gold. If you do not agree to give me my share of 400 gold coins, I will take the matter to the court. कुबुद्धि ने सुबुद्धि से कहा कि तुमने सारा सोना तुम ले गए हो, यदि तुम 400 मोहरों का हिस्सा नहीं दोगे तो मैं ये जो मामला है इसे कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। सुबुद्धि वॉज एंग्री एंड सेड, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, यू स्क्रंडल, आई एम नॉट अ थीव, a quarrel across between the two friends, and the matter was brought before the judge. Upon hearing the whole story, the judge did not know what to do, since there were no witness. Subuddhi had no witness, but Kubuddhi said he had one, the goddess of the forest. If we go and ask her, she will be able to tell us which one of us stole the gold, he suggested. सुबुद्धि क्रोधित होकर उसने कहा सुबुद्धि ने कि तुम मुझसे इस प्रकार बात
कैसे कर सकते हो तुम? दुष्ट हो, मैं चोर नहीं हूँ। ओके, स्काउंड्रेल यानी दुष्ट, तुम दुष्ट हो, और थीफ यानी चोर, मैं चोर नहीं हूँ। क्वेरल यानी होता है बहस होना, दोनों के बीच में झगड़ा या बहस होने लगी। मामला जज के सामने लाया गया। पूरी कहानी सुनने के बाद जज यह नहीं समझ पाया कि क्या किया जाए, व्हाट टू डू, तो क्या किया जाए, क्योंकि कोई गवाह ना था। सुबुद्धि के पास कोई गवाह ना था, पर कुबुद्धि ने कहा कि उसके पास एक गवाह है, वह है वन देवी, ओके, द गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट। यदि हम जाकर उससे पूछेंगे, वह हमें बता सकेगी कि हम में से किसने धन चुराया है, उसने सुझाया। कुबुद्धि went home and asked his father to help him in his plan. You have to hide in the trunk of the banyan tree, and when the judge asked the goddess of the forest to say who stole the gold, you must say it was सुबुद्धि। सुबुद्धि घर गया, उसने अपने पिताजी से अपनी योजना में सहायता करने को कहा। तुम बरगद के वृक्ष के तने में छुप जाना, और जब जज वन देवी को यह बात बताने को कहे कि धन किसने चुराया है, तो तुम सुबुद्धि का नाम ले लेना। द फादर वॉज reluctant, but Kubuddhi forcefully took him to the banyan tree in the night and made him hide in the trunk. उसके पिता तैयार नहीं थे, रिलक्टेंट यानी तैयार नहीं होना या एग्री नहीं करना, नामंजूर करना, बट कुबुद्धि उन्हें ज़बरदस्ती बरगद के पेड़ के पास ले गया रात को, और उन्हें तने में क्या किया, छिपा दिया। The early next morning, Subudhi, the judge, and Kubuddhi came to the banyan tree. The judge then called out in a loud voice, "O goddess of the forest, tell us which one of the two has taken the gold. Speak." In a deep voice, the father of Kubuddhi replied, "It is Subudhi who has stolen the gold." अगले दिन जल्दी सुबह को जज और सुबुद्धि तीनों बरगद के पेड़ के पास गए, और जज ने ज़ोर से आवाज़ में कहा कि हे वन देवी, हमें बताओ कि इन दोनों में से किसने सोना चुराया है, बोलो। तो गहरी आवाज़ में कुबुद्धि के पिता ने उत्तर दिया, यह सुबुद्धि है जिसने स्वर्ण चुराया है। द जज वॉज सरप्राइज टू हियर दैट एन ऑनेस्ट मैन लाइक सुबुद्धि could steal his friend's gold. However, thinking that it was the goddess of the forest who had really spoken to them, he said to Subuddhi, "Tell me what your punishment robbing a friend should be." सुबुद्धि को मालूम था कि वन देवी कभी झूठ नहीं बोल सकती। इसका मतलब यह हुआ कि जज ने यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा कि ईमानदार व्यक्ति, सुबुद्धि एक ईमानदार व्यक्ति है और अपने मित्र का धन चुरा सकता है, कैसे चुरा सकता है? फिर भी यह सोचकर कि यह वन देवी ही थी जो वास्तव में उसे बोली, उसने सुबुद्धि को कहा, मुझे बताओ कि एक मित्र को लूटने की तुम्हारी सज़ा क्या हो सकती है। सुबुद्धि न्यू दैट द गॉडेस वुड नेवर लाई, विच मीन दैट somebody was hiding in the tree. He thought for a moment and then said, "My lord, it is true that I stole the gold like the goddess says. I hid it in the hollow trunk of this tree. After hiding, it was about to return when I saw a great black snake enter into the trunk." सुबुद्धि ने कहा कि मुझे मालूम है कि जो गॉडेस है, जो फॉरेस्ट की जो देवी है, मतलब जो वन की जो देवी है, वह झूठ नहीं बोल सकती।
तो अकॉर्डिंग टू गॉडेज या उस वन की देवी के अकॉर्डिंग मैंने ही धन चुराया है और मैंने इसे इस वृक्ष के पास छुपा दिया। उसने एक क्षण सोचा और कहा, मालिक, यह सच है कि मैंने धन चुराया है जैसा कि वन देवी ने कहा। मैंने इसे वृक्ष के खोखले तने में छुपाया है। धन छिपाने के बाद मैं लौटने को था कि मैंने देखा कि इसके तने में एक बड़ा काला सांप प्रविष्ट हुआ है। I was afraid to come and take the gold. It is all safe in there. Permit me to light a fire. Light a fire to drive out the snake. Thus, we will be able to take out the gold. You can thereafter punish me in any way you feel it. The judge saw no reason to disagree with Subudhi's request. He granted it. Subudhi instantly lit a big fire around the tree. Kubudhi was afraid. He knew that his father was hiding within, but he could not say anything in the presence of the judge. सुबुद्धि ने फिर कहा कि जब मैं लौट रहा था तो मैंने एक काले सांप को इस वृक्ष के तने के अंदर जाते हुए देखा था और यदि हमको उस काले सांप को भगाना है तो हमें इस पूरे बैनियन ट्री या बरगद के वृक्ष के आसपास आग जलानी होगी और उसने उस बरगद के पेड़ के आसपास आग जला दी। देन कुबुद्धि को मालूम था कि उसके जो फादर थे वो वहाँ पर छुपे हुए हैं और वो जज के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। Soon the dry leaves began to burn brightly. The smoke and the fire made it difficult for Kubuddhi's father to remain within any longer. He began shouting for help and jumped out of the hollow in the trunk in the presence of the judge and Subudhi. It took no time for the judge to understand that it was all part of Kubuddhi's plan. The judge ordered Kubuddhi to give all the 800 gold coins to Subudhi and sentenced him to prison for his wickedness. जल्दी ही सूखी पत्तियों में आग जल उठी और धुएं व आग से कुबुद्धि के पिता अंदर रहना मुश्किल कर दिया। तभी वह सहायता लेने के लिए चिल्लाए और तने से बाहर आए। तने से बाहर आने के बाद वह सुबुद्धि और जज के सामने आ गए। जज को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब कुबुद्धि की योजना का हिस्सा है। जज ने कुबुद्धि को सारा सोना 800 स्वर्ण मोहरें सुबुद्धि को देने का आदेश दिया और कुबुद्धि को उसकी दुष्टता के लिए जेल भेज दिया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।